and welcome to the fifth learning session of chapter number 5 of Science 1, which is heat. So far in this chapter, these are the topics we have covered. First, we looked at latent heat, which is the heat which is either absorbed or released when any object or when any substance is changing state from solid to liquid or liquid to gas, or the other way around, gas to liquid or liquid to solid. Then we looked at regelation, which is about ice, right? Whenever you apply pressure on ice, that ice is going to convert into liquid, and as soon as the pressure is taken off, that liquid is again going to convert into ice. That is called as regelation. Next, anomalous behavior of water. Whenever for liquids, when you increase the temperature, the volume also increases. But for water, between 0 to 4 degrees Celsius, whenever you increase the temperature, its volume decreases instead of increasing. And after 4 degrees Celsius, it behaves normally. So between 0 to 4 degrees Celsius, water has an abnormal behavior, to which we say has anomalous behavior. Okay, it is called as anomalous behavior of water. Next, dew point and humidity. What is humidity? It is the moisture in the air, and we had looked at dew point. So air also has its capacity to hold water vapor. Okay, unlimited capacity नहीं होती है. So अगर capacity full होगी, हम बोलते हैं saturated है air, and when the capacity is not full, more water vapor can be added to the air. Then we say it's unsaturated. So अगर तुम unsaturated air ले लो, you reduce the temperature. With reduction in temperature, उसका capacity to hold water vapor also reduces. तो एक टेम्परेचर आ जाएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा, उसका कैपेसिटी फुल हो जाएगा. दैट इज नोन एज dew point temperature. And finally, we looked at unit of heat. We had looked at the definition of heat, right? Whenever so there are two units. First is joule in SI unit, and there is calories in CGS unit. So for calorie, the definition of 1 calorie of heat is the amount of heat you need to supply to increase the temperature of 1 gram of the substance, right? 1 gram of the substance by 1 degree between 14.5 degrees Celsius and 15.5 degrees Celsius. That is defined as 1 calorie of heat. भी 1 ग्राम के जगह पे अगर तुमने 1 किलोग्राम ले लिया, then 1 कैलोरी के जगह पे 1 किलो कैलोरी हो जाएगा, right? And you also need to remember what is the relationship between calorie and joule. Okay, so these are all the topics that we have covered so far. Today we're going to look at specific heat capacity. Okay, we're going to look at specific heat capacity. We'll look at what is we'll see what is principle of heat exchange. We'll look at measurement of specific heat. Specific heat किसी भी चीज के कैसे measure की जाती है using mixing method and calorimeter. And we'll look at some end of chapter questions today. Okay, so let us begin. These will be your learning objectives for today. You should be able to recall definition and explain specific heat capacity. You should be able to explain principle of heat exchange, and you should be able to recall याद करके लिखने आना चाहिए, oral देने आना चाहिए. End of chapter question and answer that we'll discuss today. So let us begin with an activity. So there's a try this given in your textbook. I'll first read it out, explain to you all, and then we'll move on to observations. Okay. So take 3 spheres of iron, copper and lead of equal mass. 3 spheres ले लो, 3 balls ले लो, किसके एक आयन लोखंड का, एक कॉपर, एक पित्तल का, एंड लेड. लेड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. तो 3 अलग अलग सब्सटेंसेस के तुम स्फीयर्स ले लो, बॉल्स ले लो, बट तीनों का मास इक्वल होना चाहिए, वजन तीनों का इक्वल होना चाहिए. ओके, पुट ऑल 3 spheres in boiling water in the beaker for some time. एक बीकर ले लो, बीकर में तुम बॉइलिंग वाटर, यू शुड हैव बॉइलिंग वाटर. कैसे? बीकर को एक बर्नर पे रख दो, व्हेन द बर्नर प्रोवाइड्स हीट टू द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, और उस बॉइलिंग वाटर में हमें इन तीनों स्फीयर्स को डालना है. टेक द 3 spheres आउट ऑफ वाटर. ओके, सो जब हम स्फीयर्स को पानी के बाहर निकाल रहे हैं, उसको हमने किस में डाला था? बॉइलिंग वाटर में डाला था. बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो जो बॉल्स है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर में से, और इन बॉल्स का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. सो तीनों बॉल्स को जब हम बॉइलिंग वाटर से बाहर निकालेंगे कुछ समय के बाद, तीनों बॉल्स का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, सो टेक द 3 spheres आउट ऑफ वाटर. All the spheres will be at temperature 100 degrees Celsius. Put them immediately on thick slab of wax. एक वैक्स का स्लैब बनाना है. ओके, तो एक बड़ा सा कंटेनर ले लो और उसमें वैक्स भर दो पूरा टॉप तक, और उस टॉप तक वैक्स भरे हुए बॉक्स में तुम्हें इन तीनों बॉल्स को डालना है, तीनों स्फीयर्स को डालना है. नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्फीयर गोज इनटू द वैक्स. तो क्योंकि अभी वो सब 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा गर्म है,
वो गर्म होने की वजह से वैक्स मेल्ट होने वाला है और वैक्स मेल्ट होके बॉल्स नीचे जाने वाले हैं। ओके, सो कौन सा स्फीयर कितना डीप जा रहा है ये हमें नोट करना है। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर वन मोर लास्ट टाइम। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 स्फीयर्स ले रहे हैं, 3 बॉल्स ले रहे हैं, एक आयन का, एक कॉपर का, एक लेड का। तीनों का मास इक्वल है, उसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। बॉइलिंग वाटर से हम जब उसको थोड़े टाइम के बाद निकाल देंगे, all their temperatures will be 100 degree Celsius. Why 100 degree Celsius? Because they were put in boiling water, and boiling water का temperature क्या होता है, 100 degree Celsius. So when you take them out of boiling water, all of them will have 100 degree Celsius temperature. Now you're putting them on wax. Wax का एक slab बना है, उसके ऊपर तुम उन तीनों spheres को रख रहे हो. Because all the spheres are hot, they are 100 degree Celsius hot. They're going to melt the wax around it, क्योंकि वो अपने आजू बाजू का wax को मेल्ट कर देगा, वो नीचे चला जाएगा, राइट। तो तुम्हें देखना है कि वो कितना डीप जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द ऑब्जर्वेशन यू कैन सी ओवर हियर इटसेल्फ। देखो राइट साइड में जो डायग्राम दिया, फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन दैट आयरन बॉल गोज द डीपेस्ट, देन कॉपर, एंड द लेड बॉक्स गोज द लीस्ट डीप। ओके, सबसे कम नीचे जाएगा, वो सबसे कम डीप होगा लेड का बॉल। ओके, so those are our observations. So observations, the sphere which absorbs more heat from water will give more heat to wax. Okay, आयन का बॉल सबसे नीचे गया, राइट, यानी आयन ने सबसे ज्यादा वैक्स को मेल्ट किया है। क्योंकि आयन का बॉल सबसे ज्यादा डीप गया है, इसका मतलब क्या होगा कि आयन ने सबसे ज्यादा वैक्स मेल्ट किया। आयन ने सबसे ज्यादा वैक्स मेल्ट किया, इसका मतलब क्या होगा कि आयन ने सबसे ज्यादा हीट वैक्स को ट्रांसफर किया। ओके, इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, आयन ने सबसे ज्यादा हीट वैक्स को ट्रांसफर किया। आयन में हीट कहां से आया, आयन में हीट आया था बॉइलिंग वाटर में से, तो इसका मतलब ये भी होगा कि आयन ने सबसे ज्यादा बॉइलिंग वाटर से हीट एब्जॉर्ब भी किया था। ओके, आई एम गोइंग टू अगेन डू दिस वन मोर टाइम। ये जो पूरा लॉजिकल स्टेटमेंट्स मैंने बोले, हैव टू पे अटेंशन। ओके, व्हेन आई एम मेकिंग दिस लॉजिकल स्टेटमेंट्स, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू मेक ऑल दीस स्टेटमेंट्स। सबसे ज्यादा डीप कौन सा बॉल गया है, आयन का बॉल। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वैक्स को किसने मेल्ट किया, आयन के स्फीयर ने मेल्ट किया। सबसे ज्यादा वैक्स अगर आयन के स्फीयर ने मेल्ट किया, इसका मतलब है आयन में सबसे ज्यादा हीट था। आयन को हीट कहां से मिला, बॉइलिंग वाटर में से, तो इसका मतलब क्या है, आयन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था बॉइलिंग वाटर में से। ओके, मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड स्फीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। जिसने बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था वो ज्यादा डीप जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा वैक्स को मेल्ट कर पाएगा। It can be observed that iron sphere goes the deepest into the wax, lead sphere goes the least, and copper sphere goes in intermediate depth. तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हम क्या देख पाए। Now let us move on to inferences. Inferences क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस को देख के अभी सोचना और कंक्लूजन्स बनाना, उसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। ओके, सो इन्फरेंस क्या है, this shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amounts of heat. Okay, so पहले जो तीनों स्फीयर्स थे उनका टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर था, राइट। सो से फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तो सारे के सारे 25 डिग्री सेल्सियस पे थे तीनों स्फीयर्स। फिर इन तीनों स्फीयर्स को बॉइलिंग वाटर में डाला, तीनों स्फीयर्स का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 माइनस 25, तीनों का 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इजंट इट। तीनों स्फीयर का सेम टेम्परेचर राइज हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है इक्वल राइज इन टेम्परेचर। तीनों का सेम अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बट इक्वल हीट एब्जॉर्ब किया क्या तीनों ने, तीनों को इक्वल हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए ना, क्योंकि तीनों ने 75 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो उनका टेम्परेचर, तो तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए था। बट वैसा होता है क्या, द आंसर इज नो, वैसा नहीं होता। तीनों अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना है। सो दैट इज योर फर्स्ट कंक्लूजन कि ऑल द थ्री स्फीयर्स दे एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ हीट वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं जब बॉइलिंग वाटर में डालते हैं उनको। This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for three spheres. तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी ना, तीनों की कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो कम या ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पा रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कभी कभी कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, सब्सटेंसेस की, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि ये मटेरियल कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। ओके, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है
जो डिसाइड करेगी कि उनको अगर वेइंग स्केल पे डालेंगे तो उस पर क्या नंबर आएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, वेट। जिसका वेट ज्यादा होगा उसका वेइंग स्केल पे ज्यादा नंबर आएगा, जिसका वेट कम होगा उसका वेइंग स्केल में कम नंबर आएगा, राइट। दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिससे वो ज्यादा जिससे कितना हीट को एब्जॉर्ब करेंगे पता चलेगा। The answer is specific heat capacity. Okay, let us move ahead. So let us see the definition of specific heat capacity. देखो specific आ गया, specific यानी यूनिट मास आना है। जब भी किसी भी क्वांटिटी के पहले स्पेसिफिक ये वर्ड ऐड हो जाता है उसका मतलब है यूनिट मास के लिए। यूनिट मास यानी 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम के लिए। ओके, so the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree is called as specific heat of that ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तुम्हें 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। अगर तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या सप्लाई करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सप्लाई हीट एनर्जी। सो कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फॉर 1 डिग्री बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। बट समझो वो जिस ऑब्जेक्ट का तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो सिर्फ 1 ग्राम का या फिर 1 किलोग्राम का यानी यूनिट मास का। जैसे यूनिट मास के लिए तुम ये डेफिनेशन बना दोगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, तो इस डेफिनेशन में से यूनिट मास ये कट कर दोगे तो सिर्फ हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। अगर तुम यूनिट मास ये वर्ड ऐड कर दोगे डेफिनेशन में तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो वो ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का है या फिर 1 किलोग्राम का यूनिट मास का है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा वो। ओके, तो उसका सिंबल क्या है, मास का सिंबल क्या है, मास का सिंबल है स्मॉल m। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल c। ओके, एंड यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जिसको mks यूनिट भी बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज cgs यूनिट्स। ओके, सो एसआई यूनिट क्या है, जूल पर डिग्री सेल्सियस। जूल क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी जो है उसका एसआई यूनिट है जूल, इसलिए यहाँ पे भी जूल आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट। ओके, and joule per degree Celsius kg multiplied by denominator. Okay, and mks, m for meters, k for kilograms, तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया। सिमिलरली तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट चाहिए सीजीएस यूनिट में तो जूल्स का क्या हो जाएगा, कैलोरीज हो जाएगा एंड डिग्री सेल्सियस वैसे के वैसे रहेगा बट केजी के जगह पे ग्राम हो जाएगा क्योंकि सीजीएस, राइट, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, सो ग्राम आ गया, राइट। सो केजी के जगह पे यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर एसआई यूनिट मींस एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, एंड ये जो डिग्रीज है, डिग्री सेल्सियस, वो दोनों में सेम होता है, दोनों में चेंज नहीं होता। So these are the units. Again, you need to remember them for objective type of questions or even for solving numerical type of questions. Okay, so we are done with specific heat capacity. These are the different specific heat capacities given in your textbook. Okay, for example, water का specific heat capacity क्या है? It is 1. Okay, mercury का 0.033, कॉपर का 0.09 का। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। वगैरह जिनका स्पेसिफिक हीट कम होता है थोड़ा सा हीट भी देने के बाद उनका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा। ओके, तो जिसका भी स्पेसिफिक हीट कम है वो बहुत इजीली उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। जिसका भी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उनको बहुत हीट सप्लाई करके फिर भी उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द formula. Okay, formula for specific heat. So if specific heat of an object is C, small c, mass of the object is m, and if the temperature of the object is raised by delta t degree Celsius. delta t यानी समझो मैंने एक ऑब्जेक्ट था जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था उसको मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या था, 50 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 इज 20, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज अ डेल्टा टी। तो यहाँ पे 20 डिग्री से हमने इंक्रीज किया तो डेल्टा टी 20 डिग्री हो जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस अगेन। The specific heat of an object is C, small c. Mass of the object is small m, and if the temperature of the object is raised by delta T, then the heat energy absorbed by the object, वो जो increase हुआ temperature delta T से, उसके लिए कितना energy heat
कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने, उसके लिए क्या फॉर्मूला, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ये उसका फॉर्मूला। ओके, सो अगर समझो कोई भी तुमने एम मास वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी लेट अस टेक सम एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास 2 किलो का कॉपर है और 2 किलो का कॉपर का मैंने टेम्परेचर 20 डिग्री से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन है कि उसको कितना हीट मैंने सप्लाई किया, उसको तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मास 2 kg है, यहाँ पे 2 डाल दो, स्पेसिफिक हीट तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, राइट। स्पेसिफिक कॉपर यहाँ पे 0.09 है, ये यहाँ से मिल गया स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पे 0.9 डाल दोगे, 0.095 यहाँ पे डाल दोगे। तुमने कितने टेम्परेचर से इंक्रीज किया, 20 डिग्री से इंक्रीज किया, तो डेल्टा टी में 20 डाल दोगे, तो 2 इंटू 0.095 इंटू 20 डिग्री, जो कुछ भी आंसर आएगा उतना हीट तुम्हें देना पड़ा उसका 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे नीचे क्या दिया है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर रेज लिखा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो अब हम ठंडा कर रहे हैं। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे रेज्ड है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज है, तो यहाँ पे आप ठंडा कर रहे हैं। तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। हियर वी हैव रिटन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, पर जब हम ठंडा कर रहे हैं तो हीट एनर्जी लूज करता है ऑब्जेक्ट, रिलीज होता है हीट एनर्जी, सो हियर वी हैव रिटन हीट एनर्जी इज लॉस्ट। क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी लूज करेगा, फॉर्मूला का रहेगा सेम फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, सो अगर तुम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई रिलीज हो रहा है, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, सिर्फ डेल्टा टी का साइन चेंज हो जाएगा। 20 से 50 कर दिया मैंने, तो कितना, सॉरी 30 से 50 कर दिया मैंने टेम्परेचर, तो 50 माइनस 30 20 हो गया। बट समझो 50 से 30 किया मैंने, ठंडा कर दिया 50 से 30, सो मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या है 30, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 50, सो 50 से 30 किया तो 30 माइनस 50 करूंगा, 30 माइनस 50 माइनस 20 आ जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर तुम रेज करते हो डेल्टा टी पॉजिटिव हो जाता है, जब भी तुम टेम्परेचर कम करते हो, व्हेन यू डिक्रीज टेम्परेचर डेल्टा टी बिकम्स नेगेटिव। व्हाई, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और अपने आप साइन बराबर तुम्हारा आ जाएगा। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज delta T means final temperature minus the initial temperature. Okay, so that is your formula for heat capacity. Now let us move on to heat exchange. Heat exchange is very simple. Okay, और बहुत ही obvious है. So if heat is exchanged between hot and cold object, अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट ले लो और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लो, उसको साथ में लेके आ जाओ, तो लोग हीट एक्सचेंज करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होने वाला है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी, एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज को साथ में लेके आ जाओ, तो जो गर्म चीज होगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपना जो एनर्जी, हीट एनर्जी वो ठंडे ऑब्जेक्ट को दे रहा है, और ठंडे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है गर्म ऑब्जेक्ट में से। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1 ऑफ हीट एनर्जी, ये हमें ऑलरेडी पता था, राइट। द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज till the temperature of both the objects attain the same value. अगर एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज साथ में लेके आए, तो गर्म चीज का जो टेम्परेचर होगा वो कम होते जाएगा, ठंडे चीज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा। कब तक होते रहेगा ये, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये होते रहेगा। ओके, in this process the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. जब तुम एक ठंडी और गर्म चीज को साथ में लेके आ जाते हो, जो गर्म चीज है दैट इज गोइंग टू लूज हीट एनर्जी, उसका हीट एनर्जी कम हो जाएगा, और जो ठंडा चीज है इज गोइंग टू गेन हीट एनर्जी, उसका हीट एनर्जी इंक्रीज होने वाला है। सो इट वाज वेरी ऑब्वियस, ये हमें ऑलरेडी पता था, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या है, इट्स अगेन वेरी सिंपल। ओके, सो पहले तुम्हें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना है। थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बस सोचना एक्सपेरिमेंट के बारे में। इफ अ सिस्टम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, कौन से दो ऑब्जेक्ट्स, वो हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट को हमने आइसोलेट कर दिया एनवायरनमेंट से। आइसोलेट यानी अकेला कर देना, अलग कर देना। तो एनवायरनमेंट से अलग करेंगे, कैसे करेंगे, बाय कीपिंग इट इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। रेजिस्टेंट यानी अपोज करना, अलाउ नहीं करना। ओके, सो हीट रेजिस्टेंस यानी हीट को एक्सचेंज होने अलाउ नहीं करेगा वो। तो ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा हीट रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो हीट रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या है, मीनिंग दैट द एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ओनली। ये हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे सकता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे सकता है, बट बाहर कोई एनर्जी नहीं जाएगी, बाहर से अंदर की एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि हमने हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में डाल दिया।
then no energy can flow from inside the box or come into the box. अंदर से कोई बाहर एनर्जी नहीं जाएगी, बाहर से अंदर कोई एनर्जी नहीं आएगी. ओके, तो क्या मिलेगा हमें? इन दिस सिचुएशन द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल बी ट्रू. प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट का जो हीट एनर्जी लूज हो गया, दैट विल बी हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. कोल्ड एनर्जी उतना हीट ले लेगा, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट जो एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. ओके, सो उतना ही है, इट्स वेरी सिंपल. नाउ मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी नॉट हीट एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होता है हमने समझा, राइट? ये स्पेसिफिक हीट वाली प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगी कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये है स्पेसिफिक हीट. तो उसको मेजर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई से फॉर एग्जाम्पल हैव दिस ओवर हियर. ओके, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास. अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पेसिफिक हीट क्या है मुझे मेजर करना है. हाउ विल आई मेजर? तो उसका यहाँ पे प्रोसीजर दिया. ओके, so this procedure is known as mixing method. कौन सा मेथड है? मिक्सिंग मेथड. एंड फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज्ड. सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? समझो फॉर एग्जांपल, गिव मी अ मिनट. ओके, या आई टोल्ड यू, राइट? से फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट क्या है ये तुम्हें मेजर करना है. सो व्हाट यू विल डू इज, तुम पहले इसको गर्म करोगे. जनरली हाउ डू यू वार्म थिंग्स अप? इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो. बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा. फिर बाद में बॉइलिंग वाटर के बाहर निकालो एंड इसको अभी कैलोरीमीटर में डालो. व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर इज जस्ट अ बीकर जिसमें पानी होता है, टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मोमीटर होता है. व्हाट इज कैलोरीमीटर? एक बीकर है, बीकर में पानी रखा है और उस पानी में बाहर से एक थर्मोमीटर आ रहा है जो टेम्परेचर चेक करेगा, वो कैलोरीमीटर होता है. ये ऑब्जेक्ट का मुझे स्पेसिफिक हीट चेक करना है, इसको गर्म कर दिया, गर्म करके कैलोरीमीटर के पानी में डाल दूंगा और फिर कैलोरीमीटर को बंद करके उसका टेम्परेचर नोट करना शुरू कर दूंगा. तो दिस इज योर प्रोसीजर. इसको हम मिक्सिंग मेथड बोलते हैं, फिर मिक्सिंग मेथड बोलते हैं यूजिंग कैलोरीमीटर. ओके, सो इफ अ हॉट ऑब्जेक्ट जिसको हमने गर्म किया और जिसका स्पेसिफिक हीट मेजर कर रहे हैं इज पुट इन द वाटर इन अ कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर में एक बीकर होता है उसमें पानी होता है, उसमें अगर हम डाल देंगे हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द वाटर एंड कैलोरीमीटर स्टार्ट्स. तो अभी मैंने गर्म चीज उस पानी में डाला है, तो जो गर्म चीज का हीट एनर्जी है वो दो लोगों को मिलेगा. किसको मिलेगा? सबसे पहली बात तो वाटर को मिलेगा, और वो वाटर जिस कैलोरीमीटर के अंदर रखा है, एक डब्बा होगा, राइट, एक बीकर होगा जिसके अंदर वाटर रखा है, तो उसको भी थोड़ा हीट एनर्जी मिलने वाला है. तो जो गर्म ऑब्जेक्ट में पानी में डालूंगा थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा हीट एनर्जी वाटर ले लेगा, थोड़ा सा हीट एनर्जी कैलोरीमीटर ले लेगा. This continues till the temperature of solid object, water and calorimeter becomes equal. हमने अभी जस्ट देखा, राइट, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज जो क्या बोलता है कि टेम्परेचर कम ज्यादा होते रहेगा, एडजस्ट होते रहेगा. कब तक? जब तक तीनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. वाटर का, कैलोरीमीटर का और जो ऑब्जेक्ट हमने हॉट ऑब्जेक्ट डाला है उसका, इन तीनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं होता तब तक वो टेम्परेचर एडजस्ट होते रहेंगे. और इक्वेशन क्या बनेगा? हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट. वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करके डाला है तो हीट लूज करने वाला है. वो जो हीट है किसको मिलेगा? इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, वाटर को मिलेगा, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर. तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा. ओके, सो फार क्लियर. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग सम मैथमेटिक्स. अभी थोड़ा मैथ्स करना पड़ेगा. ओके, सो इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट उस ये जो कॉम्प्लिकेटेड में अभी इट्स नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड. मैं अभी जो 3-4 इक्वेशंस लिखूंगा अगर तुम इनको बार बार सिस्टमैटिकली लॉजिकली एनालाइज करोगे इट्स वेरी सिंपल. ओके, so now let us start doing some mathematics. So the first thing is वो जो ऑब्जेक्ट हमने वाटर में डाला इट इज गोइंग टू लूज हीट. बिकॉज इट इज गोइंग टू लूज हीट, उसका इक्वेशन क्या बनेगा? वी जस्ट स्टडीड दिस इक्वेशन, राइट. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू स्पेसिफिक इनटू डेल्टा टी, राइट. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. स्पेसिफिक हीट का अब हम फॉर्मूला यूज करने वाले. तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट को लूज कर रहा है, कितना हीट लूज करेगा? उसका जितना मास है मल्टीप्लाइड उसका स्पेसिफिक हीट कितना है और डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना कम हुआ. दिस इज योर डेल्टा टी. तो दिस इज योर स्मॉल एम, दिस इज योर स्मॉल सी, दिस इज योर डेल्टा टी. सॉलिड ऑब्जेक्ट जो गर्म ऑब्जेक्ट था वो कितना हीट लूज करेगा उसके लिए फॉर्मूला है. उसका मास कितना है मल्टीप्लाइड उसका स्पेसिफिक हीट कितना है मल्टीप्लाइड वो कितना टेम्परेचर कम हो रहा है. ओके, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन. और इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्यू बोल रहे हैं. जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट लूज कर रहा है उसको हम क्यू बोल रहे हैं. नेक्स्ट,
हीट गेन बाय वाटर, अब ये जो हीट लूज कर रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो वाटर थोड़ा सा ले लेगा और कैलोरीमीटर थोड़ा सा ले लेगा। सो वैसे ही हम वाटर के लिए भी वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वाटर का स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये भी डेल्टा टी, स्मॉल एम ऑफ वाटर, स्मॉल सी ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी फॉर वाटर, और इसको हम Q1 बोल रहे हैं। ओके, बट सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने वाला है क्या हीट हमारे हॉट ऑब्जेक्ट का? नो, वाटर के साथ साथ कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब करने वाला है हीट। सो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, हीट अगेन गेन एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, जिसको हम Q2 बोल रहे हैं, कैलोरीमीटर का मास मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो दिस इज स्मॉल एम ऑफ कैलोरीमीटर, स्मॉल सी ऑफ कैलोरीमीटर एंड डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब यहाँ से आ रहा है। ओके, इस फॉर्मूला से, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला स्टडी किया, सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। मास ऑफ वाटर यहाँ पे आ गया, मास ऑफ सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, कितना टेम्परेचर कम हुआ है। ओके, इस फॉर्मूला को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो एक बार हॉट ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दिया, उसको Q बोल दिया, दूसरी बार वाटर के लिए यूज किया, उसको Q1 बोल दिया, और तीसरी बार कैलोरीमीटर के लिए यूज किया, उसको Q2 बोल दिया। बट हमने पिछले साइड में क्या देखा था, कौन सा फॉर्मूला देखा था, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट कितना होगा, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। यहाँ पे मैंने वाटर गलती से 2 बार लिखा है, हीट गेन बाय वाटर, वाटर इन वाटर, इट्स जस्ट हीट गेन बाय वाटर। ओके, सो हीट गेन बाय वाटर कहाँ पे है, हीट गेन बाय वाटर यहाँ पे Q1, तो उसके यहाँ पे Q1 लिख दिया, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q2 लिख दिया, एंड हीट लॉस्ट बाय द हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट Q है, तो उस Q को यहाँ पे लिख दिया। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आ गया हमें। बस अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं पता है, तुम्हें मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पता ही है, तुम वो मेजर कर सकते हो, मास ऑफ वाटर पता ही है, ये भी तुम मेजर कर सकते हो, मास ऑफ कैलोरीमीटर पता है, ये भी तुम मेजर कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट किसका ढूंढना है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तुम्हें पता है, यस, उस टेबल में से मिल जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर पता है क्या तुम्हें, यस, ये भी मिल जाएगा उस टेबल में से, कौन से मटेरियल से कैलोरीमीटर बना है उसके हिसाब से टेबल में ढूंढ लेंगे हम। कितना टेम्परेचर कम हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज होगा, ये भी तुम थर्मामीटर से चेक कर सकते हो। तो तुम्हें क्या नहीं पता, बस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं पता, बाकी सब तुम्हें यहाँ पे पता है, या तुम मेजर कर सकते हो। तो अगर तुम इस इक्वेशन में सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हम जिसका ढूंढ रहे थे, जिसको गर्म करके हमने कैलोरीमीटर में डाला था, उसका हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, सो अगेन इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये 3-3 4-4 इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। सेम फॉर्मूला को बार बार यूज किया, एक बार वाटर के लिए, एक बार कैलोरीमीटर के लिए, और एक बार ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और फिर बाद में प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज को अप्लाई कर दिया। सो इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, एक 2-3 बार तुम बार बार देखोगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो ऐसे हम स्पेसिफिक हीट को मेजर कर सकते हैं यूजिंग मिक्सिंग मेथड एंड बाय यूजिंग कैलोरीमीटर। ओके, so that's it, let's move on to end of chapter questions. First question, very simple one line question, which principle is used to measure the specific heat capacity of a substance? कौन सा principle use करते हैं? Just a one line answer, एक लाइन में तुम आंसर लिख पाओगे। Okay, it will generally be coming for 1 mark in your board exam. So wait for 5 seconds for you to pause the video, write the answer by yourself. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and have written the answer already. आज ही हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज को यूज करके हम स्पेसिफिक हीट को मेजर करते हैं, बराबर, क्योंकि जब इस हॉट ऑब्जेक्ट को हम उस कैलोरीमीटर के वाटर में डालते हैं, तब हीट एक्सचेंज हो जाता है, और जो फाइनल इक्वेशन हमने लिखा था Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज से आता है, राइट? सो दैट्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यहाँ पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज? अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होते हैं, ये तुम कैसे प्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से? ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग वेट्स होते हैं, ये तुम कैसे प्रूव करोगे? उसको वेइंग स्केल पे डाल दो, और उस वेइंग स्केल पे तुम्हें पता चलेगा कि सबका वेट अलग अलग है, बराबर? तो उसी तरह स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग है, अलग अलग सब्सटेंसेस का, ये तुम कैसे प्रूव कर सकते हो? ओके, थिंक एंड राइट द आंसर।
Okay, we'll wait for 5 seconds for you to pause the video and write the answers by yourself. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and are ready with the answer. The first part तो सबको आ जाना चाहिए था, खुद से लिख लेना चाहिए था. Okay. What is meant by specific heat capacity? तो बस definition लिखना था. The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass, क्योंकि specific heat बोला है ना, specific के लिए unit mass आना चाहिए. Of a unit mass, temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity of that object. तो बस definition लिखना था. Now second part. Second part was the first activity we did in today's learning session. Same activity को explain करना था बस. फिर डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको लेबल करना पड़ेगा. एंड अभी तुम टाइटल दे दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो. Solid spheres of iron, copper, lead of equal mass are taken and placed into boiling water in the beaker till they attain temperature 100 degree Celsius. पहले 3 अलग अलग सब्सटेंसेस के स्फीयर्स ले लो इक्वल मास के, उसको पानी में डाल दो, उबलते हुए पानी में डाल दो, बॉइलिंग वाटर में डाल दो, और जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता उनका टेम्परेचर तब तक उबालते रहो. ओके. नेक्स्ट, these spheres are then immediately placed on thick slab of wax simultaneously. एक साथ एक थिक स्लैब ऑफ वैक्स के ऊपर ये तीनों स्फीयर्स को डाल दो. फिर क्या ऑब्जर्वेशन होता है? इज ऑब्जर्व दैट ईच स्फीयर रीचेस डिफरेंट डेप्थ इन द वैक्स स्लैब. हर स्फीयर अलग अलग डेप्थ तक नीचे चला जाता है वैक्स स्लैब में. आयरन स्फीयर गोज डीपेस्ट फॉलोड बाय कॉपर एंड लेड स्फीयर. सबसे ज्यादा डीप आयरन स्फीयर जाता है, सबसे कम डीप लेड स्फीयर जाता है. ओके, so these were our observations. Point number 4, the sphere that absorbs more heat from water supplies more heat to wax, causing more melting of wax and going deeper in wax. जो स्फीयर सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है पानी में से, वो ज्यादा वैक्स को मेल्ट करता है, और जो ज्यादा वैक्स को मेल्ट करता है वो ज्यादा डीप चले जाता है. ओके, तो इससे क्या प्रूव होता है? दिस प्रूव्स दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, सारे किसी भी सब्सटेंस का इक्वल टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, the three spheres have absorbed different amounts of heat. तीनों का टेम्परेचर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हुआ, रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर भी तीनों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया था. एंड पोजेस डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज. तीनों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, यानी उनका तीनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है. सो दैट्स हाउ यू प्रूव कि सब सब्सटेंसेस के हीट कैपेसिटीज अलग अलग होते हैं. ओके, मेक श्योर ड्राइंग द डायग्राम एज वेल, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस in a very logical way in a written form in your board exam. Okay, this will generally come for 3 marks. Next, read the following paragraph and answer the questions. Paragraph based question है, यहाँ पे paragraph दिया है, इस paragraph को read करके तुम्हें इन 4 questions के answers देना. Okay, so where should I put my face? Okay, let me reduce its size. Yeah, so read this paragraph, pause the video here, read this paragraph, and इन 4 questions के answers लिखने. Very simple questions there. If you really try by yourself, खुद से try किया, you should be able to answer all these 4 questions by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and solve all 4 questions. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video, have read the entire paragraph, and were able to answer at least 2 of the given 4 questions. Okay, so now let us look at the answers. So first question क्या था? First question is heat is transferred from where to where. तो कहाँ पे मिलेगा तुम्हें पैराग्राफ में? You will get it from here. Okay, the temperature of cold object goes on increasing due to gain of energy, and temperature of hot object goes on decreasing due to loss of energy. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि heat is transferred from hot object to cold object, and this is the principle of heat exchange. Okay, ये हमें उस लाइन से पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस से हमें कौन सा प्रिंसिपल पता चलता है? आज हमने एक ही प्रिंसिपल नया पढ़ा है. सो इसका आंसर, इसका हिंट कहाँ पे था? पैराग्राफ में. सी, दिस इज नॉट एन इंग्लिश एग्जाम. ओके, इंग्लिश एग्जाम में फिर इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं है जो तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा पैराग्राफ में. पैराग्राफ में सिर्फ हिंट्स मिलते हैं, और वो हिंट्स को यूज करके तुम्हें आंसर याद आ जाने चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगी. सो हिंट कहाँ पे था? हिंट था यहाँ पे, हीट इज एक्सचेंज. तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ? Principle of heat exchange. Next question is how will you state the principle briefly? एकदम कम शब्दों में, in very few words, how can you
स्टेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे स्टेट कर सकते हो, इसका हिंट कहाँ पे था, यहाँ पे. If system of both the objects is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, then no energy can flow from inside the box or come inside the box. Okay, तो यहाँ पे तुम्हारा हिंट, इस हिंट को यूज करके तुम्हें प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है हीट एक्सचेंज की. तो कैसे करोगे? As inside the heat resistant box, heat lost by the hot object is exactly equal to heat gained by the cold object. Resistant box के अंदर heat, hot object जो heat lose कर रहा है वो same heat cold object absorb कर रहा है. Okay, this is the so principle of heat exchange is stated as, इसके वजह से principle of heat exchange को कैसे हम बोल सकते हैं? In an isolated system, isolated नहीं अकेला, okay, environment के साथ heat exchange नहीं करता. Isolated system, heat lost by hot object is equal to heat gained by cold object. That is how you will explain this principle. Okay, last question, which property of the substance is measured using this principle? कौन सी property को हम measure करोगे? So ये पूरे पैराग्राफ में हिंट कहाँ पे है? The answer is कहीं पे भी नहीं है, इसलिए मैंने पूरे पैराग्राफ को ग्रीन मार्क किया. पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी ऐसा आंसर डायरेक्टली दिया नहीं है. तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि अच्छा इसके बारे में बात करनी है, हीट एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही होगी? बात हो रही होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की. तो तुम्हें खुद से पता होना चाहिए, इसलिए you need to read the textbook very thoroughly. अगर तुम टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पाओगे, ये सब क्वेश्चंस को तुम आंसर नहीं कर पाओगे. ओके, एंड अगेन by mistake I've written, do not copy it, but do copy all these 4 questions in your notebooks. Okay, don't not copy these questions in your notebook. Copy all these 4 question and answers in your notebook. Okay, so that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you recall the definition of specific heat capacity? Specific heat capacity का definition तुम बोल सकते हो क्या? तुम उसको explain कर सकते हो क्या? Can you explain me the principle of heat exchange? Can you give me oral answers for all the questions that we discussed today? Can you write all the answers that we discussed today without C? If yes, then you have accomplished today's learning objectives. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.